السلام علیکم ناظرین، دنیا ورثے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ٹوم انٹرنیشنل اسکول، کیمبرج، IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tom International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tom International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, شمشیر گنج، ملک پیٹ، چارمینار اینڈ دلسکھ نگر۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے۔ آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس۔ عید کے 2 دنوں میں بھی اسرائیلی فورسز کی بربریت، 2 دنوں کے دوران 100 سے زائد فلسطین شہید، 300 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے شمالی مغربی غزہ کے کئی رہائشی آبادیوں کے لیے انخلاء کے نئے احکامات جاری کیے۔ کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکلنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ۔ حج کا آخری رکن بھی مکمل، تینوں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج اکرام وادی مینا سے واپس ہو جائیں گے۔ منی پور میں میتی لیڈر کی گرفتاری کے بعد 5 اضلاع میں کرفیو، موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ دہلی کے ریالپور میں کمسن لڑکی کی عصمت ریزی، عام آدمی پارٹی کی مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں پر سخت تنقیدیں۔ BRS لیڈر و رکن اسمبلی منگتی گوپی ناتھ کا انتقال، آخری رسومات انجام دے دی گئی۔ KCR اور دیگر لیڈرز نے پیش کیا خراج عقیدت۔ اور تلنگانہ کے بڈی گڈا بیرج میں 6 نوجوان غرقاب، لاشوں کی تلاش کا عمل جاری۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ قابض اسرائیلی فورسز نے 611ویں دن بھی اپنی بربریت جاری رکھی۔ یہ ہولناک سلسلہ اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا جب بنجمن نتنیاہو نے جنگ بندی کے معاہدے سے ایک طرفہ انحراف کرتے ہوئے جنگ کو دوبارہ بھڑکایا۔ امریکہ کی کھلی سیاسی اور عسکری سرپرستی نے اس نسل کشی کو مزید بے رحم بنا دیا۔ غزہ میں قابض فوج نے ہفتے کی صبح سے اتوار کی دوپہر تک درجنوں فضائی حملے کیے، جبکہ مارچ کے آغاز سے غذائی اشیاء کی بندش نے شدید قحط کو جنم دیا ہے۔ عید کے 2 دنوں میں اسرائیل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور درجنوں حملے کیے۔ ہفتے کے دن الصبح غزہ پر جاری صہیونی فوج کے ہاتھوں قتل عام کے نتیجے میں
91 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों दीगर जख्मी हो गए। इनमें से कम 15 अफराद को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो गाजा शहर के इलाके अल बसरा में एक रिहायशी मकान में मौजूद थे। कई शोहदा ऐसे भी हैं जो सिर्फ पानी और खाने की तलाश में निकले थे कि बमों का निशाना बन गए। गाजा की मजलूम वो महसूर सरजमीन एक बार फिर ईद के मौके पर खून से रंग दी गई। काबिज इसराइली फ़ौज की दरिंदगी ने ईद उल अज़हा के पहले 2 दिनों के दौरान 100 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद और 300 से ज़्यादा को ज़ख्मी कर दिया। वज़ारत सेहत गाजा के मुताबिक ये एदाद शुमार उन शहदा और ज़ख्मियों पर मुश्तमिल है जो गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान अस्पतालों में लाए गए। ईद का पहला दिन जुमा एक क़यामत सुग़रा बनकर आया। काबिज इसराइल ने इमदादी मराकज़ और बेघर शहरियों के ख़ेमों को बरह रास्त निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों और बुज़ुर्गों की थी। ऐसे अफराद जो निहत्ते थे सिर्फ इमदाद के लिए कतार में खड़े थे। गाज़ा के सरकारी दफ्तर बराए इत्तलात ने बताया कि राफा शहर जो पहले ही खाकिस्तर हो चुका है, वहाँ एक नए कत्लगाह बर्पा की गई जहाँ काबिज इसराइली बमबारी से मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद और 61 ज़ख्मी हुए। यह हमला भी इमदादी सामान की तकसीम के एक मरकज़ पर किया गया। इसराइली फ़ौज ने शुमाल मगरबी गाज़ा की कई रिहायशी आबादियों के लिए इनक़ला के नए अहकाम जारी किए हैं। ये अब रोज़ाना का मामूल बन चुका है कि फ़ौज शहरियों को अपने घरों से निकलने पर मजबूर कर रही है, जिससे न सिर्फ उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है बल्कि उनके लिए महफूज पनागाहें भी महदूद होती जा रही हैं। हुज्जाज इकराम आज बरोज़ इतवार 8 जून 12 ज़िलहज को अयाम तशरीक़ के दूसरे दिन तीनों शैतानों को कंकरियां मारने रबी जमारात के बाद वादी मीना से रुखसत हो जाएंगे। बहुत कम तादाद में रह जाने वाले हुज्जाज पीर 9 जून 13 ज़िलहज को भी मीना में क़याम करेंगे और तीसरे दिन की कंकरियां मारने के बाद रवाना होंगे। इस साल का हज 1446 हिजरी बमुताबिक 2025 का आखिरी मरहला मुकम्मल होने के साथ ही आर्जी ख़ैमा बस्ती वादी मीना आइंदा बरस तक के लिए खाली हो जाएगी। अयाम तशरीक़ के दूसरी जबकि हज की तीसरी रमी के बाद हुज्जाज इकराम गुरूब आफ्ताब से कबल वादी मीना की हुदूद से निकलकर मक्के मुकर्रमा पहुँच जाएंगे, जहाँ से उनकी अपने अपने मुल्कों को रवानगी के प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने लॉस एंजलिस में वफाकी एहलकारों इमिग्रेशन छापों के बाद मुजाहरों के बाद 2000 नेशनल गार्ड फौजी तैनात करने का ऐलान किया। वजीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर लॉस एंजलिस में तशद्दुद जारी रहा तो पेंटागन एक्टिव ड्यूटी फौजियों को भी तैनात करने के लिए तैयार है, जो करीबी कैंप पेडलेंट में मौजूद है। हफ्ते के रोज़ एहतजाज में शरीक तकरीबन 100 मुजाहिरीन को पैरामाउंट इलाके में वफाकी एजेंट्स के साथ तनाज़ा का सामना था, जहां बाज़ मुजाहिरीन मैक्सिकन परचम लहरा रहे थे और कुछ ने मास्क पहन रखे थे। अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। मणिपुर में जुमा की देर रात ताज़ा तशद्दुद फूट पड़ा, जिसने हुकूमत को 5 अजला में सख्त कर्फ्यू नाफिज करने और मोबाइल इंटरनेट को मुअत्तल करने पर मजबूर कर दिया। हफ्ते के रोज़ मेती लीडर आरम्बल तंगोल की गिरफ्तारी के बाद हफ्ते की रात पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। तशद्दुद में एक बस को मुकम्मल तौर पर आग लगा दी गई, जबकि सड़कों पर सख्त पाबंदियों के तहत खामोशी छाई रही। बदअमनी इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थोबल, कांगचुंग और बिष्णुपुर में फैल गई। इसके जवाब में बिष्णुपुर में रात 11 बजे से मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थोबल और कांगचुंग अजला में CRPC की दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस हुक्मनामे में 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। पुलिस और मुकामी हुक्काम ने अवाम पर जोर दिया कि वो घरों के अंदर रहें और पाबंदियों पर अमल करें। इसी दौरान मणिपुर के 25 MLAs और एक MP ने रियासत के गवर्नर अजय भल्ला से मुलाकात की है, जिसमें रियासत में फैली नस्ली तशद्दुद पर बातचीत की गई। हिंदुस्तानी क्रिकेटर रिंकू सिंह और SP रुकन पार्लिमान प्रिया सरोज की मंगनी की तकरीब पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लिमान अखिलेश यादव ने कहा है कि सियासत और क्रिकेट 2 अलहदा मुख्तलिफ शोबे हैं, जबकि 2 लोगों के ख्यालात और रवैये एक जैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ख़ानदान इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। मैं दोनों ख़ानदानों को मुबारकबाद देता हूँ। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग 2 चीज़ें हैं, लेकिन 2 इंसान, 2 लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज़ है।
सर ने काफी संघर्ष किया और संघर्ष के साथ जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं रिंकू सिंह को और उनके परिवार को और तूफानी सरोज जी की और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के लोग तब्दीली चाहते हैं। हम इकट्ठा होंगे और न सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए बल्कि बिहार को बदलने के लिए भी काम करेंगे। हमारा गठबंधन साथ है, कोई उलझन नहीं। तेजस्वी यादव कोलकाता में मीडिया से बात कर रहे थे। जिस आर्टिकल के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आर्टिकल हमने भी पढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं। उसका ये संदर्भ है कहने का कि महागठबंधन के कांग्रेस के अलावा और जितने अलाए हैं जी सबको मिलकर के तय करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जो होगा वो होगा। लेकिन हम लोगों का एक मकसद है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हम लोग सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि बिहार को बदलने के लिए हम लोग आएंगे और मिल करके काम करेंगे। इसमें इफ एंड बट हमारा महागठबंधन का लाइन सेट है, हम सब लोग एक साथ हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम लोग सब लोग टच में रहते हैं। दिल्ली के दयालपुर में नाबालिग लड़की की इस्मतरेजी और कत्ल पर साबिक सीएम आतिशी मारलीना मरकजी और रियासती हुकूमतों पर सख्त तनकीदें करती नजर आईं। इन्होंने कहा है कि इस वाक़े ने दिल्ली और पूरी कौम को शर्मिंदा कर दिया। इन्होंने कहा है कि आज बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। अगर दिल्ली में 4 इंजन वाली हुकूमत है तो हमारी बेटियां क्यों महफूज नहीं हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा है कि सीएम रेखा गुप्ता तकरीबन हर रोज़ मीडिया इवेंट में नजर आती हैं, मगर इस वाक़े पर वो कोई तबसरा करना नहीं चाहती। दूसरी जानिब दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी और आतिशी मारलीना पर तनकीदें की। जंगपुरा में मदरासी कैंप के तजावीज़ात की जगह का दौरा करने पर दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता का कहना था कि कोई भी कच्ची आबादियों को हाथ नहीं लगा रहा है। आम आदमी पार्टी एक ड्रामेबाज पार्टी है और ये बेरोज़गार लोग हैं, उनका काम गुमराह करना और धोखा देना है। वहीं हम दिल्ली के लोगों को तरक्की की राह पर गामज़न कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि सहूलियात देना हमारा काम है, लेकिन अगर कोई नाले पर या सड़क पर घर बनाता है तो ये नहीं चलेगा। हमें सबकी सहूलतों का ख्याल रखना होगा। कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना। बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है। दिल्ली की जनता को बहकाना, वर्गलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते। जहाँ बसे हैं बसिए, सुविधाएं देना हमारा काम है, हम देंगे। परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। और आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के मामले को नहीं मानती रही और दिल्ली सरकार ने वो पूरा किया। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाई कोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हमें हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दे। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस जुबली हिल्स के रुकन असम्बली मंगती गोपीनाथ का इंतकाल हुआ है। वो 62 बरस के थे। गुज़िश्ता जुमेरात 5 जून को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद घर वालों ने उन्हें फौरी तौर पर गच्चीबौली में वाक़े AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उन्हें ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया था, मगर इलाज के दौरान आज इतवार की सुबह तकरीबन 6 बजे उनका इंतकाल हो गया।
जुबली हिल से बीआरएस एमएलए मंगती गोपीनाथ की मौत पर बीआरएस एमएलसी के कविता का कहना है कि मंगती की बदकिस्मती से मौत बहुत तकलीफदा है। बीआरएस पार्टी उनके ख़ानदान के साथ खड़ी है। हम भी अपने कैडर के साथ खड़े हैं क्योंकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत हमारे कैडर पर जुल्म कर रही है और उन पर झूठे केसेस डालने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब साबिक तेलंगाना के वज़ीर आला और बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव, टीडीपी लीडर और आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश और बीआरएस लीडर के रामाराव ने हैदराबाद की जुबली हिल से बीआरएस एमएलए मंगती गोपीनाथ को खिराज अक़ीदत पेश किया। मंगती गोपीनाथ का आज सुबह एआईजी हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ था। तेलंगाना काबीना में आज तौसी अमल में लाई गई। तेलंगाना राजभवन में आज रियासती काबीना में तौसी के लिए हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। रियासती गवर्नर ने राजभवन में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में 3 नए वज़रा को हलफ दिलाया। जिन शख्सियात को वजारत का हलफ दिलाया गया इनमें ए लक्ष्मण कुमार, वी श्रीहरी और विवेक वेंकट स्वामी शामिल हैं। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखवेंद्र रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। तेलंगाना के मड्डीगड्डा बैरेज में 6 नौजवान गर्काब हो गए। तमाम नौजवानों की उम्रें 20 साल से कम बताई गई। शादी की तकरीब में शरीक ये नौजवान तफरी के लिए दरियाए गोदावरी के किनारे नहाने गए थे। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के भोपालपल्ली ज़िले के महादेवपुर मंडल के मड्डीगड्डा बैरेज के करीब पेश आया। पुलिस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक महादेवपुर मंडल के अम्बदपल्ली गाँव के रिहायशी के घर शादी की तकरीब थी। हफ्ते की शाम तकरीबन 5:30 बजे रिश्तेदारों में से 8 अफराद एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मड्डीगड्डा बैरेज पहुंचे। वहां नहाने के लिए एक नौजवान सबसे पहले दरिया में उतरा। जब वो पानी में डूबने लगा तो उसका भाई इसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो खुद भी डूब गया। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में यहाँ 6 नौजवान इसी मुकाम पर पानी में गर्क हो गए। हादसे से बच निकलने वाले एक नौजवान ने ये तफसीलात बतलाई। मुतासरीन में से 4 का ताल्लुक अम्बदपल्ली से जबकि 2 का ताल्लुक कोरल कोंटा गांव से बताया गया। पुलिस के मुताबिक हालिया मरम्मत के काम के बायस बैरेज के ऊपरी इलाकों में गहरे गड्ढे बन गए थे जिनकी गहराई तकरीबन 12 फीट हो सकती है। इसके अलावा गुज़िश्ता 2 दिनों से प्रणिता नदी के बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों की वजह से गोदावरी में पानी का बहाव बढ़ चुका है। हादसे के वक्त दरिया में तकरीबन 4500 क्यूसिक पानी बह रहा था, जिसकी वजह से लापता नौजवानों की तलाश मुश्किल हो गई है। रेस्क्यू टीमों में गोताखोरों को तलब किया गया और रियासती सतह की आफात से निपटने वाली 6 टीमों को भी तैनात किया जा रहा है। वज़ीर श्रीधर बाबू ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद रंज व गम का इजहार किया, जबकि कलेक्टर राहुल शर्मा और एसपी किरण को फौरी तौर पर तलाशी मुहिम में तेज़ी लाने के अहकाम दिए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar,
एंड दिलसुख नगर। महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। ईद के 2 दिनों में भी इस्राइली फोर्सेस की बर्बरियत। 2 दिनों के दौरान 100 से ज्यादा फलस्तीन शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। इस्राइली फौज ने शुमाली मगरबी गाजा के कई रिहायशी आबादियों के लिए इनखला के नए अहकाम जारी किए। खाने की तलाश में घर से बाहर निकलने वाले फलस्तीनियों पर इस्राइली फौज की फायरिंग। हज का आखिरी रुकन भी मुकम्मल। तीनों शैतान को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज इकराम वादी मिना से वापस हो जाएंगे। मणिपुर में मेती लीडर की गिरफ्तारी के बाद 5 अजला में कर्फ्यू, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। दिल्ली के दयालपुर में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी। आम आदमी पार्टी की मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों पर सख्त तनकीदें। बीआरएस लीडर व रुकन असम्बली मंगती गोपीनाथ का इंतकाल। आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। केसीआर और दीगर लीडर्स ने पेश किया खराज अकीदत। और तेलंगाना के बिडिगड्डा बैरेज में 6 नौजवान गर्काब, लाशों की तलाश का अमल जारी। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह।